हेलो 11th क्लास। हम आज डिस्कस जो करने वाले हैं वो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। हमने लास्ट क्लास में वेन डायग्राम डिस्कस किए थे। किस किस को कितना कितना ही याद है, ज़रा टेस्ट योर सेल्फ। ओके, सपोज मैं ये ड्रॉ कर रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ ये सब कुछ बिकॉज हमें ये सब यूज़ करना है आज, तो आपको पता होना चाहिए। यू मस्ट बी, इट मस्ट, एवरीथिंग मस्ट बी ऑन योर टिप्स। हम ये यूनिवर्सल सेट लेते थे, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। अब आप मुझे बताएंगे अगर मैं ये शेड कर रही हूँ तो ये क्या शेड हो रहा है, व्हाट इज दिस, ये क्या है, व्हाट इज दिस, कैसे शेड किया मैंने। कंप्लीट रीजन डिनोट्स व्हाट इज इट डिनोट्स? यस, इट डिनोट्स ए यूनियन बी। ये ए यूनियन बी को बनाया है मैंने। ओके, लेट्स मेक वन मोर. This is for this. Okay, do not get confused. A, B, universal set. What does this denotes? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, सही सोच रहे हैं। रादर आई विल से दैट इट इज A intersection B. Totally correct. Now who can tell me? Because most important are these ones. But I'm going to ask it now. They are the most important. This is A, this is B, this is universal. What is this? Many of you may have guessed it and maybe guessed it correctly also. What is this? ये क्या है? This is from complete A. Just take it. From complete A, this portion is not. This complete circle is A. From this part is not there. That means what it is? It is A minus B. What it is? From A subtracting intersection part, that means that becomes A minus B. That means from the complete set A, just exclude the intersection part and exclude the common elements of A and B. So then only you get only A. This part, isn't it? It's only A. Only A. What we call this as? This is only A. In layman language we call it as only A. Okay. Similarly, now I know all of you will tell me correctly for this. This is A, this is B, this is U, and this is, yes, what you people are thinking is totally correct. It is B minus A. Only B. Thoroughly correct. Okay, the last one. Quite easy one. Very easy one. Just to see that you remember the things. It's a universal set, set A, set B. What are these? Means I'm shading, but what does these sets actually? They are disjoint sets. What are they? If they are not having anything common, they are disjoint sets. And obviously if I shade A union B only, it means all the elements of A and all the elements of B, and they should not, repetition should not be there. When they are not having anything common, how the repetition will be there? Simple as this. So these are disjoint sets. Okay, all these must be clear. Whenever Venn diagram has to be clear while doing practical problems. I'll be even using formula. We even directly use the formula, but it's both. Either you can do it with the Venn diagram or using formula, anything, whatever, just need to do it correctly over there. That is what is important. Okay, so this must also be very clear, because in the later on after 12th, maybe for the entrance examinations also, you will be asked a question using Venn diagram. You should be able to do it correctly there also. Okay, so this is A union B. When complete is being shaded, that means now over here A union B, if I want to read it, it reads as A or B. याद रखेंगे, remember this. A union B का मतलब है A और B. A intersection B means that A and B.
That means I want A and B both. Intersection is common, so A and B both. This is important because in sentence you'll be using a word or. Whenever the word or is coming, that means you're talking about union. Whenever the word and is coming, you're talking about intersection. याद रखेंगे आप, ये important है. A minus B, as I've written it already, only A. So B minus A क्या हो जाएगा? Only B. Yes. It is only B and these are disjoints. तो ये एकदम thoroughly clear. अब ध्यान से देखेंगे जरा, अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, आई एम मेकिंग वन मोर एंड आप बताएंगे उसके अंदर मुझे. I'm sharing all the three different parts with different direction of rays, line segments over there. Now this part only, this denotes A minus B, or I say only A. Clear? This part denotes A intersection B, that means A and B, both. I wanted A and B both. Okay, I'm writing both also. And this part denotes B minus A, or we call it as only B. This is important. Now look at all the three. All the three of them are this part, this part, this part. They are not having anything common between them. Only A means this part of a circle from here to here. This is only A. Only A is this part of a circle. This is only A. Okay. A and B both is this part where I've got drawn horizontal lines. This part is A and B. Both. Where part of A is also there, part of B is also there. Where both them, and they are having a common elements over there. That's A and B both. And this part of a circle is only B, and all the three, whether I talk about only A and B both, and only B, all these three are disjoint parts of the sets. They are not having anything common. So if I write only set A, I'm writing again a set, then I'll call these three as sets itself, and they all are disjoint sets. They are not having anything common between them. Remember this. Okay. Now what are we going to do in practical problems? We'll be discussing that. Just see this. Okay. Remember all this. Okay. Coming to it now. Now I'm talking about n. I even had written this last time also. If I write n of A, means number of elements of set A we are talking about. Okay. Whenever we write n of A. N of A means number of elements of set A. That is n of A. Okay. So if I write carefully, if I write n of A union B, what does this mean? This means a number of elements of A or B. Union का meaning क्या था? और ना. So this means that number of elements of set A or, this is very important, or set B. Elements of set A or elements of set B. N of A union B means this. Okay, set A or set B. And whenever we write A minus B or B minus A means only A, only B. If I am writing n of A minus B, this means number of elements of only, that word is important, set A. That means elements which are only and only lying in set A, not in B. Only and only lying in set A, not in B. Get this, okay? And n of B minus A means number of elements, obviously of only, again word only. Set क्या आ जाएगा अब? B, yes. And last one, A intersection B means number of elements of set of, I'll write set, obviously set has to come, set A and, this is important, and set B. That means elements which are lying both in A and both in B.
Got it? If the sets are disjoint sets, then intersection will become what? Null set. Nothing is common between them. Intersection become null set. Then can I write? I'm writing now formula and how it has come. You have to tell me. Okay. Now can I write that n of A union B? N of A union B. If they are not having anything common, A and B are disjoint set. Union means either A or B. That means all the elements of A and B. That is what we write it, isn't it? अगर मैं रोस्टर फॉर्म में आपको कोई भी सेट लिख के देती हूँ A और B के, तो अब यूनियन में क्या लिखते हो? पहले सारे एलिमेंट्स A के लिखते हो, फिर B के जो रिपीटर होते हैं उसे नहीं लिखते आप दोबारा से. दैट इज व्हाट यू राइट. अब अगर मैं बोला सेट ही डिसजॉइंट है तो कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा ऑब्वियसली. तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A विल कम एंड देन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ B विल कम. तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ B, बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू कम. सपोज मैं एग्जाम्पल देती हूँ यहाँ पे. ओके, so that becomes, suppose set A has got the elements 1 2 3. ये set A में है. set B has got the elements A and B. Clear? Is there anything common? What is A intersection B? Anything common between them? Nothing is common. तो वो क्या बन जाएगा? It's a null set. Clear? What is A union B? Now tell me. What is A union B? पहले आप क्या करते हैं? सारे elements फर्स्ट सेट की लिखेंगे 1 2 3. देन यू गो टू द सेकेंड सेट. ए एंड बी कुछ रिपीट नहीं हो रहा तो इसलिए एज इट इज ए और बी भी आ जाएंगे. दिस बिकम्स, अब अगर मैं बोलती एन, एन मीन्स नंबर ऑफ, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन दिस. ए एंड बी में कितने प्रेजेंट है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए एंड बी 5 इस केस में. एन ऑफ ए कितना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए, हाउ मेनी आर देयर? देयर आर 3. नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बी, हाउ मेनी आर प्रेजेंट इन बी? देयर आर 2. Add these two. So can I say that when the sets are disjoint, यहाँ पे लिखेंगे when A and B are, this word is important, disjoint sets. When A and B are disjoint sets, then क्या हो जाएगा? N of A union B, that means this 5 is actually sum of these two, so it can be written as N of A plus N of B. Is it clear? And is it correct? Yes, it is correct, and I hope it is clear. N of A union B is 5, N of A is 3, N of B is 2. Therefore N of A union B क्या हो जाएगा? N of A plus N of B when the sets are disjoint. अब अगर suppose disjoint नहीं है, कुछ कॉमन है, फिर क्या होगा? फिर देखते हैं क्या होगा. डिसजॉइंट में तो हमने क्या बना, तो 2 डिफरेंट सर्कल बने थे ना. अब अगर कुछ कॉमन है, ये सब याद होना चाहिए. प्लीज मेक अ नोट ऑफ ऑल दिस. ओके, इस फॉर्मूले को भी याद रखेंगे. वेन एवर द डिसजॉइंट सेट, तो ए यूनियन बी का नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी. अब देखते हैं दूसरे वाला जरा हम फटाफट. ठीक है, वेन डायग्राम से भी आपको फिर से साथ साथ बता देती हूँ. ए बी यू, ये आपका क्या था? दिस पार्ट ए माइनस बी. ये पार्ट क्या है आपका? ए इंटरसेक्शन बी, एंड दिस पार्ट वॉज बी माइनस ए. अब ये कंप्लीट होता है ए यूनियन बी. ध्यान से देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ए यूनियन बी, ये तीनों दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, यानी दीज 3 दे आर डिसजॉइंट, दे आर नॉट हैविंग एनीथिंग कॉमन. अभी हमने देखा डिसजॉइंट में क्या था. अगर डिसजॉइंट था तो क्या, सबका अलग अलग एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, उनको ऐड करते जाओ. यानी यूजिंग दैट कैन आई राइट दिस ओवर हेयर एज कि ये क्या है? एन ऑफ ए माइनस बी है प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है प्लस एन ऑफ बी माइनस ए. करेक्ट है? ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस से. ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस से. करेक्ट है ना? यही तो है ए यूनियन बी. इट्स करेक्ट विद दिस. दिस इज व्हाट इट इज देयर. अब लेकिन ये सब है क्या? ये फॉर्मूला हो जाएगा सिर्फ हमें से. पर अगर मुझे ये नहीं मालूम, मुझे पूरा सेट ए दे रखा है, फिर जैसे यहाँ पे था. अब अगर मैं यहाँ पे, आई एम चेंजिंग एग्जाम्पल ना. ओके, यहाँ पर 1 2 3 के बाद सपोज ए बी है, यहाँ पर भी सपोज आई एम हैविंग 1 ऑल्सो. अब इज इट ए इंटरसेक्शन बी नल सेट है क्या?
इज इट नल सेट? नो, इट इज नॉट नल सेट. क्या क्या प्रेजेंट हो रहा है कॉमन? 1 और A. अब अगर मैं A यूनियन B बोलूंगी तो क्या क्या आ जाएगा? पहले 1 2 3 A आया, फिर यहाँ पे चेक किया A ऑलरेडी है, B अकेला आया, तो अब आ तो उतने ही रहे हैं. लेकिन अगर मैं बात करूंगी N ऑफ A, वो कितना है इस केस में? टोटल 4. N ऑफ B की बात करूंगी तो कितना है? 3. और N ऑफ A यूनियन B की बात करूंगी तो कितना आया? 5. वो 4 + 3 थोड़ा है? इट इज़ नॉट 4 + 3, वो तो ज़्यादा है. 4 + 3 तो ज़्यादा है. N ऑफ A यूनियन B तो कम है, क्योंकि रिपीटेशन थी, वो रिपीटेशन नहीं है. तो रिपीटेशन रिपीट नहीं कर, मतलब जो एलिमेंट्स रिपीट हो तो हम नहीं लिखते दोबारा से. अब फॉर्मूला कैसे डिराइव करें, दैट्स इंपॉर्टेंट. अब ध्यान से देखिए हम क्या करते हैं. लुक एट केयरफुली ओवर हियर, मैं कुछ लिख रही हूँ. लुक एट दिस, N ऑफ A - B प्लस N ऑफ A इंटरसेक्शन B. A - B प्लस A इंटरसेक्शन B. A - B कौन सा पोर्शन है? ये रहा पोर्शन. A इंटरसेक्शन B कौन सा पोर्शन है? ये. अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ, दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ऐड करें, A - B ये पार्ट है सर्कल का, दिस पार्ट. A इंटरसेक्शन B ये पार्ट है सर्कल का, तो दोनों को ऐड किया, पूरा सर्कल नहीं बन गया ये? दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट, ध्यान से समझेंगे. दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट, दोनों को ऐड किया तो कंप्लीट सर्कल हो गया कि नहीं हो गया? तो सारे के सारे एलिमेंट्स हो गए कि नहीं हो गए? आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं. अगर मैं A - B लिखूं, A - B, फ्रॉम A सब्ट्रैक्ट B, दिस व्हाट इट मीन्स ना, फ्रॉम A सब्ट्रैक्ट B. तो जो कॉमन है वही सब्ट्रैक्ट होता है. इसमें से 1 येस प्रेजेंट है, वी कैन नॉट राइट. 2 3 नहीं प्रेजेंट है, तो 2 भी आया, 3 भी आया. A प्रेजेंट है, आई कैन नॉट राइट. तो A - B सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है? 2 और 3. ये A - B, उसमें क्या ऐड करना है? A इंटरसेक्शन B. A इंटरसेक्शन B क्या रहा? ये रहा 1A. 2 3 1A, 2 3 1A, यस इट बिकम्स एट A. ये A - B, ये इंटरसेक्शन, दोनों को ऐड करूंगी, वापस पूरा का पूरा क्या बन जाता है? सेट A. दैट मीन्स इन दोनों को अगर मैं ऐड कर रही हूं तो ये क्या बन जाता है? N ऑफ A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A. अब B, इसको क्या करते हैं? सिर्फ B - A रह गया, तो हम क्या करें? दिखते जो ध्यान से, व्हाट आई एम डूइंग इट, N ऑफ B - A, आई ऐड. इफ आई एम एडिंग समथिंग, मैं अगेन इसमें भी इंटरसेक्शन ऐड कर रही हूँ. अगर मैं ऐड करूँगी तो इक्वेशन चेंज करी, तो आई कैन नॉट डू दैट. तो अगर ऐड किया तो आई नीड टू सब्ट्रैक्ट ऑल्सो. तो -N ऑफ A इंटरसेक्शन B, हमने ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया. एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बोथ. अब एडिशन इसके साथ ले लेते हैं हम. अब ये B - A प्लस A इंटरसेक्शन B, दिस प्लस दिस, तो अगेन क्या हो जाएगा? कंप्लीट सर्कल B. तो यानी ये क्या हो जाएगा? N ऑफ A plus N of B, number of elements of A and number of elements of B minus N of A intersection B, and this is A union B. Now check it out, करेक्ट है कि नहीं है? ये हम चेक कर लेते हैं अभी करेक्ट है कि नहीं है ये इंटरसेक्शन. अब चेक करते हैं. A union B कितना आया था हमारे पास? 5. तो LHS क्या होगा इसके अकॉर्डिंगली? 5. ये LHS, दिस योर LHS. अब RHS चेक करते हैं. RHS क्या? N ऑफ A में कितने हमने निकाला था? N ऑफ A कितना है? 4, तो पहले आया 4. N ऑफ B कितना है? हमने निकाला था 3, इधर लिखा 3, माइनस इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट आ रहे हैं? N ऑफ A इंटरसेक्शन में हाउ मेनी एलिमेंट्स आर कमिंग? 2. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 2. 4 + 3 7, 7 - 2 इज हाउ मच? 5, and that matches our LHS, hence it is correct. So therefore when the sets are not disjoint, जब वो डिसजॉइंट नहीं है तो A यूनियन B क्या हो जाता है? N ऑफ A प्लस N ऑफ B माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B. क्लियर विद दिस? N of A plus N of B minus N of A intersection B. Remember this is important, very very important. Okay, यूनियन में जब डिसजॉइंट है तो हम क्या करेंगे? सिर्फ N of A union B is N of A plus N of B. यूनियन का मीनिंग क्या है? स्टेटमेंट में लिखा हुआ आएगा तो क्या मीनिंग होता है वहाँ पे? मतलब क्या वर्ड लिखा होता है? और की जगह क्या अप्लाई करेंगे? यूनियन कंप्लीट शेडिंग पूरी की पूरी. ठीक है, फॉर्मूला क्या अप्लाई हो जाएगा? ये अगर सिर्फ डिसजॉइंट नहीं, डिसजॉइंट है तो इंटरसेक्शन है ही नहीं ना, तो 0, तो ये पार्ट आ जाएगा सिर्फ वहाँ पर. ठीक है, ओके. एंड इंटरसेक्शन के लिए क्या वर्ड लिखा होगा स्टेटमेंट में? एंड. और अगर ओनली ये पूछा तो यानी कि मुझे सिर्फ ये पार्ट चाहिए, दैट इज इट, ओनली ये. अगर ओनली बी पूछा है तो सिर्फ ये पार्ट चाहिए. कहना है ना. एक और चीज़ भी देखेंगे. कहने अगर हमारे पास वेन डायग्राम आता है कई बार तो हम ऐसे दिखा देते हैं उसे. अब हमें मालूम है ओनली ए कौन सा है, ओनली बी कौन सा है.
ये ए ये बी, ये पार्ट सिर्फ ये जो ओनली ए वाला पार्ट है उसे मैं डिनोट कर देती हूँ स्मॉल अल्फ़ाबेट ए से, ओके। ओनली बी वाले को स्मॉल अल्फ़ाबेट बी से, और जो दोनों में इंटरसेक्शन है उसे कह देंगे सी से। तो इसका मतलब है ओनली ए इज जस्ट ए, ओनली बी इज जस्ट बी, इंटरसेक्शन यानी दोनों में बोथ ए एंड बी बोथ इज अल्फ़ाबेट सी। एंड अगर मैं यूनियन बोलूँगी, यूनियन इज ऑल, यूनियन क्या है ऑल, तो वो क्या हो जाएगा ए प्लस सी प्लस बी। क्लियर? मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये प्लीज़ नोट कर लेंगे। अगर ओनली ए बोला तो वो सिर्फ ए है, ओनली बी बोला तो सिर्फ बी है, ए एंड बी बोला आपके पास दोनों तो वो दैट इज अल्फ़ाबेट सी, एंड ए और बी बोला और क्या है यूनियन, एंड का मीनिंग क्या इंटरसेक्शन, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, एंड ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और ये क्या है ए यूनियन बी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एकदम क्लियरली याद होना चाहिए अच्छे से। फाइन इनफ, लेट्स लुक एट सम प्रॉब्लम्स नाउ। अब कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देख लेते हैं इसी पे बेस्ड फटाफट। बहुत इजी होते हैं, आप चाहे फॉर्मूला यूज़ करें, चाहे वेन डायग्राम में जैसे अभी ABC बोला वैसे यूज़ करें, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं और आप कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। आई लाइक द स्टार। ओके, लेट अस सी आपकी एक्सरसाइज में से कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द एक्सरसाइज। पहले वाले में तो ऑब्वियसली यूनियन इंटरसेक्शन बना के दे दिया, फॉर्मूले में से पुट कर दीजिए, वैल्यूज हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड में देव गिवन एन ऑफ एक्स, एन ऑफ वाई एंड यूनियन दे दिया, इंटरसेक्शन बोला है, फॉर्मूले में वैल्यूज डाल दो, अपने आप ही आ जाएगा। सेकंड में भी सेम वे है। कम टू द थर्ड, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, टोटल कितने पीपल दिए 400, 250 कैन स्पीक हिंदी, 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। ना बोथ एंड वर्ड, ये दोनों आ रहे तो मतलब क्या पूछा है आपसे, दे आर आस्किंग यू यूनियन या इंटरसेक्शन, क्या पूछा है इंटरसेक्शन। जब भी टोटल गिवन है इस केस के अंदर हम ये कुछ भी ऐसा नहीं सोचते कि कुछ नहीं बोल रहे, बिकॉज जब मैं वेन डायग्राम बना रही तो सर्कल के बाहर भी देयर इज अ वेरी लॉट ऑफ स्पेसेस देयर, दैट मीन्स इट मे बी देयर के फ्यू लोग कुछ दोनों में से ए और बी में से कुछ भी नहीं ले रहे। बट यहाँ पे एग्जाम्पशन ऑलवेज ये है कि व्हाट वी आर टॉकिंग इज टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट ग्रुप, यानी हम सिर्फ यूनियन की बात कर रहे हैं, देयर इज नथिंग लेफ्ट, हम इसकी बात ही नहीं कर रहे। तो जो भी टोटल गिवन है वो आपका हमेशा यूनियन है, अनलेस इट इज बीन रिटन देयर फ्यू पीपल हु डजंट टेक पार्ट इन एनीथिंग, ऐसा लिख कर आएगा तभी सिर्फ आप छोड़ेंगे, अदरवाइज टोटल इज ऑलवेज यूनियन। ओके, अब यहाँ पे क्या है, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, दैट मीन्स टोटल यूनियन कितना दिया 400। तो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। अब मैं दोनों वैसे बता रही हूँ आपको, यूजिंग फॉर्मूला एंड यूजिंग वेन डायग्राम, कैसे यूज कर रहे हैं ए बी। ओके, अब इट इज गिवन दैट फर्स्ट केस में ए यूनियन बी, टोटल बोला है ना, कितना बोला 400, दिस इज नंबर, एन होता है, नॉट ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी। ओके, देन इट इज गिवन दैट 250 कैन स्पीक हिंदी, ये हिंदी और इंग्लिश है। सपोज आप लिखेंगे लेट सेट ए डिनोट्स people speaking Hindi and set B denotes people speaking English, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। set B denotes people speaking English पूरा लिखेंगे प्लीज, सेंटेंस कंप्लीट होगा। ओके, नाउ एन ऑफ ए यूनियन बी कितना गिवन है आपके पास 100, देन गिवन है हिंदी 250, दैट मीन्स ए था ना हमारे लिए हिंदी के लिए ए, तो एन ऑफ ए कितना हो जाएगा 250, और बी हमारा किसके लिए था इंग्लिश के लिए, वो कितना हो जाएगा, इट इज गिवन दैट हाउ मेनी ऑफ देम 200 एंड दे आस्किंग हाउ मेनी स्पीक बोथ, बोथ मीन्स इंटरसेक्शन, तो ये हो गया। अब यूजिंग फॉर्मूला, फॉर्मूला यूज करते क्या है, सीधे लिखेंगे वी नो दैट व्हाट वी नो, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पुट द वैल्यूज, यूनियन की जगह पे कितना आएगा 400, ए कितना है 250, बी कितना है 200 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये इधर ले आइए, गेट दिस ऑन दिस साइड, तो देयरफॉर एन आपको मालूम है हाउ टू सिंप्लीफाई, ए इंटरसेक्शन बी कितना जगह 250 प्लस 200 इज 450,
माइनस 400, ये जाके सब्ट्रैक्ट, वो कितना हो गया आपके लिए 50. Therefore n of A intersection B is how much? 50. Got that. अब ये यूजिंग फॉर्मूला. अब वेन डायग्राम से देखें क्या क्या होता है. लेट अस सी एंड यू कैन कंपेयर बोथ. ओके, वेन डायग्राम में हम क्या करते हैं, ऐसे बनाते हैं. दिस पार्ट इज ए, जैसे किया था, दिस पार्ट इज बी, दिस पार्ट इज सी. आप ध्यान से देखते जाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत एंड ईजी भी है एंड आगे आपको यूज होगा, इसलिए मालूम होना चाहिए क्या है. ठीक है, आपके पास गिवन था टोटल, कितना गिवन था 400 टोटल. अब हमने लर्न किया था, अभी इससे पहले मैंने लिख के दिया था पूरा टोटल क्या होता है, कंप्लीट. यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या गिवन है आपके पास, A प्लस बी प्लस सी गिवन है 400. यूनियन इज कंप्लीट, ये हो गया. देन एन ऑफ ए, ए यानी पूरा सर्कल ए का. ए अगर मैं बोलूँ तो यानी कंप्लीट सर्कल ऑफ ए. ए के अंदर कितने लोग आ रहे हैं टोटल, ए और सी बोथ. एन ऑफ ए का मीनिंग है कंप्लीट सर्कल ऑफ ए. एंड व्हाट अल्फाबेट्स आर कमिंग इन ए एंड सी बोथ. तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए प्लस सी की वैल्यू होगी 250. ये समझना जरूरी है. एन ऑफ ए 250 है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स लाइंग इन अ सेट ए इज 250. और कितने एलिमेंट्स है इस सेट के अंदर दिख रहे, ए और एक सी, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 250. ठीक है, अब एन ऑफ बी कितना बोला है 200. कितने एलिमेंट्स इसमें है, बी प्लस सी इज इक्वल टू हाउ मच 200. व्हाट वी नीड टू फाइंड बोथ. बोथ क्या होता है, दैट मीन्स जो इंटरसेक्शन पूछा है वो पूछा है, और इंटरसेक्शन क्या है हमारे लिए C. You are required to find C. अब कुछ भी ना, A प्लस सी, बी प्लस सी, इन दोनों को ऐड कर देते हैं. ये 1 है सपोज, ये 2, ये 3. यू नो हाउ टू सॉल्व इट, आई नो दैट. ऐड 2 and 3, क्या हो जाएगा, A प्लस बी प्लस 2C इक्वल टू कितना हो गया 450. आप इसमें से 1 को माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट 1 से प्रैक्ट हो गए तो a प्लस बी प्लस सी हुआ ना इधर, और इक्वल टू कितना है 400. ये 2c में से c है, c इज इक्वल टू 50. किसी भी वैसे, आई नो यू नो हाउ टू सॉल्व इट, किसी भी वैसे कर सकते हो. आ गया. नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग बोथ, नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग बोथ, दैट इज द वे टू डू इट. सिंपल. वेदर यू डू लाइक दिस, वेदर यू डू लाइक दिस, 100% करेक्ट, यू गेट फुल मार्क्स देयर. ठीक है, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ईजी से क्वेश्चन हैं ये तो. Where did I keep this? Okay, let us statement जरूर लिखेंगे प्लीज. एंड बी स्टेटमेंट क्वेश्चन, स्टार्ट भी स्टेटमेंट से होता है, एंड भी स्टेटमेंट से होता है. पुट द स्टेटमेंट इन अ बॉक्स ऑल्सो. पूरा ये ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग बोथ इज 50 एंड पुट द कंप्लीट स्टेटमेंट इन अ बॉक्स. ओके, चलो बैक टू द क्वेश्चन. ओके, लेट अस हैव अ लिटिल बिट, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होना चाहिए हमारे पास. क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज का लेते हैं जरा. इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, टोटल 65 गिवन है, यानी यूनियन है 65. 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, यानी इंटरसेक्शन दे दिया है. हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, ओनली बोला है, ध्यान देंगे आप. एंड नॉट क्रिकेट, सिर्फ ओनली टेनिस. एंड हाउ मेनी लाइक टेनिस, जब बोला है हाउ मेनी लाइक टेनिस यानी कंप्लीट सर्कल पूछा है, और हाउ मेनी लाइक ओनली टेनिस यानी सिर्फ वो पार्ट ऑफ सर्कल जिसमें इंटरसेक्शन नहीं आ रहा. ये ध्यान देना. ठीक है, दोनों से करें. ओके, पहले हम वेन डायग्राम से कर लेते हैं. आई लव टू डू विद Venn diagram because those are easy. ठीक है, let us A stands for cricket and B for tennis लिखेंगे. आपने पूरा स्टेटमेंट लिखनी है, A for tennis and B for cricket. You need to write complete statement. Please get this. टोटल गिवन है आपके पास कितना 65, यानी अगर मैं ये ऐसे ले रही हूँ A B and C, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A प्लस बी प्लस सी कितना गिवन है 65 ना, सॉरी 65. 40 लाइक क्रिकेट, क्रिकेट का सर्कल पूरा का पूरा 40 है. 40 लाइक क्रिकेट लिखा, ओनली वर्ड क्या ही नहीं है. 40 लाइक क्रिकेट, क्रिकेट का सर्कल कौन सा है, बी. बी में क्या आ रहा है, कंप्लीट सर्कल. बी में क्या क्या अल्फाबेट आ रहे हैं, ये दोनों. तो यानी बी प्लस सी गिवन है कितना आपके पास 40. ये बी प्लस सी हो गया. फिर उसके बाद क्या बोला उन्होंने, 10 लाइक बोथ क्रिकेट टेनिस. बोथ, बोथ में कौन सा है, ये पार्ट बोथ जो दोनों सर्कल में आ रहा है. तो यानी सी कितना दिया आपके पास
10 और उसके बाद क्या पूछना, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट एंड हाउ मेनी लाइक टेनिस, ये पूछा आपसे। अब टेनिस ओनली, यहाँ ध्यान से देखेंगे, ए किसके लिए था, टेनिस के लिए, बी किसके लिए था, क्रिकेट के लिए आपका, ठीक है। अब ओनली टेनिस कौन सा पार्ट है, सिर्फ ए, ओनली टेनिस ये है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ओनली टेनिस अगर पूछेंगे तो आपको ए बताना है, और टेनिस पूछेंगे तो टेनिस इज द कंप्लीट सर्कल ऑफ कैपिटल ए, तो उसमें कौन कौन से अल्फाबेट आ रहे हैं, ए एंड सी, तो ये बताना। देखो ना कितना इजी है, ये बी प्लस सी रहा, यहाँ डाल देंगे बी प्लस सी, फ्रॉम 1 में से 2 को माइनस कर दो तो ए कितना हो जाएगा, 65 है, सॉरी 65 माइनस 40 तो कितना आ गया, तो हाउ मेनी लाइक ओनली टेनिस, 25, हाउ मेनी लाइक टेनिस, ए प्लस सी, 25 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 35, डन। क्या मुश्किल है, इट्स सो वेरी इजी इजंट इट, ओके, समझ में आया। अब फॉर्मूले से चेक करना है, फॉर्मूले से भी चेक कर लेते हैं जरा, वे डू आई एवरी टाइम कीप डस्टर, ये रब कर दें, नोट कर लिया, लेट अस कम टू द फॉर्मूला नाउ, ओके। अब आपके पास फॉर्मूले में क्या क्या गिवन था, ए यूनियन बी इन गिवन था, दैट वाज 65, ये गिवन था, एंड कितना और क्या क्या गिवन था एक बार, 65, देन इट वाज 40 लाइक क्रिकेट का सर्कल बी है तो एन ऑफ बी, यहाँ पे तो बी की बात कर रही हूँ, 40, बोथ इंटरसेक्शन गिवन था आपके पास 10, है ना। अब आपसे पूछा था हाउ मेनी लाइक टेनिस, ये क्या है टेनिस, अब मैं पूरा सर्कल बोलूँगी तो वो क्या होगा, टेनिस, दिस इज टेनिस के लिए, हाउ मेनी लाइक टेनिस, पूरा टेनिस बोल रही, नंबर ऑफ पीपल लाइकिंग टेनिस, आपने पूरा अपनी स्टेटमेंट लिखनी है, ये पूछा है आपसे। देन पूछा हाउ मेनी लाइक ओनली टेनिस, अब यहाँ पे ध्यान देंगे क्योंकि अब हम फॉर्मूला यूज़ करें तो उसके अकॉर्डिंगली पता हो, ओनली टेनिस सिर्फ ये पार्ट है, तो पूरे सर्कल में से क्या हुआ, ये माइनस ना, तो कैन आई राइट ओनली टेनिस के लिए, ध्यान से देखेंगे मैं क्या लिख रही हूँ, ओनली टेनिस का मीनिंग है एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पूरे सर्कल में से इंटरसेक्शन को माइनस कर दो तो ओनली टेनिस आ जाएगा, क्लियर। बस अब फॉर्मूले में डालें इसे, क्या फॉर्मूला होता है, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पुट द वैल्यूज, यूनियन कितना दिया है 65, ए कितना दिया आपके पास नहीं मालूम, तो एन ऑफ ए का ए, बी कितना गिवन है 40, और ये कितना गिवन था 10, 40 में से 10 गया 30, इधर आके माइनस, तो देयरफॉर एन ऑफ ए कितना हो गया 35 आ गया। पीपल हु लाइक टेनिस, ओनली नहीं आया, टेनिस आया, अब ओनली टेनिस क्या, ए में से इंटरसेक्शन माइनस, तो ओनली टेनिस कितना हो जाएगा, एन ऑफ ओनली टेनिस कितना हो जाएगा 35 माइनस इंटरसेक्शन, दैट इज हाउ मच 25। सी और यू डू लाइक दिस, क्वेश्चन तो ऑलवेज सॉल्व हो जाता है आराम से, ठीक है। एक और देखें, ऐसे रब नहीं कर रही बिकॉज वी रिक्वायर इट, ओके, सिर्फ एयर भी चेंज हो जाते हैं। Okay, now in a committee 50 people can speak French in Spanish आ गया, 50 can speak French, 20 can speak Spanish, only word कहीं नहीं है, यानी पूरा का पूरा सर्कल बोल रहे हैं, and 10 speak both Spanish and French, how many speak at least one of the two languages। अब ये at least and most are very interesting, at least का मतलब होता है कम से कम एक लैंग्वेज आना, then at least means if I know at least one, that means I may know one or more than one, I know one or more than one, that means I may know two, I may know three, I may know four, सब, तो यानी सब नहीं आ गए, वन भी जिनको आती है और वन से ज़्यादा भी, तो सारे तो आ गए, वन एंड ऑल। तो जब एटलीस्ट वर्ड यूज़ करते तो ध्यान से देखेंगे आप, इसके अंदर हमेशा एटलीस्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूनियन में। एटलीस्ट वन मीन्स वन और मोर देन वन, यानी पीपल हु स्पीक वन वन, पीपल हु स्पीक टू टू, पीपल हु स्पीक थ्री थ्री, फोर फोर, गोजन सब ऐड हो जाएंगे, दैट इज व्हाट इट मीन्स, दैट मीन्स यूनियन की बात कर रहे हैं हम। अब क्या क्या गिवन है, अगेन प्लीज़ आप लिखेंगे स्टेटमेंट में, दिस इज फ्रेंच, ए एंड बी किसको डिनोट कर रहे हैं, स्पेनिश,
Okay, this is what we have it. Up 50 speaks French, that means N of A given है 50 and 20 speak Spanish यानी N of B given है आपके पास 20 and 10 speak both यानी N of A intersection B given है आपके पास 10. How many speak at least one of the two language? At least means क्या है? टोटल यूनियन चाहिए. एटलीस्ट मीन्स आइदर दिस ओनली, ये पार्ट हो जाएगा ओनली फ्रेंच, ये बोथ, ये ओनली स्पेनिश. तो एटलीस्ट वन मीन्स चाहे फ्रेंच बोलते हो चाहे स्पेनिश, दोनों ऐड, एंड जब दोनों लैंग्वेज, तो ये तो टोटल ऐड, तो यानी टोटल क्या है? यूनियन. दैट मीन्स दे आर आस्किंग एन ऑफ ए यूनियन बी. और आप अभी निकाल सकते हो, पुट इन द फॉर्मूला एंड फाइंड इट आउट. और चाहे तो यहाँ अगर इसके अकॉर्डिंगली करूँगी, यहाँ पे ए क्या है? ए प्लस सी गिवन है आपके पास 50 एन ऑफ ए, तो यानी ए का सर्कल ए प्लस सी. एन ऑफ बी, बी का सर्कल बी प्लस सी इज 20 एंड इंटरसेक्शन ओनली सी है, वो कितना 10. अब सी इसमें डालो, ए आ जाएगा, इसमें भी डालो, बी आ जाएगा, तीनों ए बी सी पूरा मालूम है, यूनियन आ गया. तो चाहे ऐसे निकालें चाहे ऐसे निकालें, बस स्टेटमेंट शुरू में भी और स्टेटमेंट एंड में भी ध्यान रखें. ठीक है, एक एग्जाम्पल भी बहुत इंटरेस्टिंग सा है इसका, मैं आपको एक बार समझा देती हूँ, करते रहेंगे खुद फिर उसके बाद. ओके, आई थिंक दैट इज एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? 27. ठीक है, दैट्स गुड. इन 26 ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. देयर इज़ वन लाइन इन दैट, वो समझनी जरूरी है. मैं सिर्फ वो रीड करूँगी. एंड प्लीज़ अगर मैं एग्जाम्पल्स भी जो बोलती हूँ तो आई नेवर से दैट एग्जाम्पल में आप सोल्यूशन देखो बुक में क्या लिखा है, फिर तो बेनिफिट ही नहीं ना. देन तो वी आर डूइंग चीटिंग टू आवर सेल्फ ओनली. तो आपने ऑलवेज क्या करना है? क्वेश्चन पढ़िए एंड पहले खुद सोचिए हाउ टू डू. एंड व्हेन यू थॉट इनफ और नहीं हो सकता, then discuss with your ma'am instead of looking for the solution. okay, और उसके बाद ही solution, मतलब आती नहीं, कोई है ही नहीं पार्ट, देखना ही नहीं है. ओके, दैट इज नॉट एन ऑप्शन एट ऑल. ओके, इन अ सर पहले 26 एग्जाम्पल की बात करें. इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, दैट मीन्स वो टोटल है 400 स्टूडेंट्स टोटल. 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, 150 टेकिंग ऑरेंज जूस एंड 75 वर लिस्टेड टेकिंग बोथ. मैं अगर यहाँ की बात करूँ, इस क्वेश्चन को भी कर ही देते हैं. ठीक है, ठीक है. ए है क्या देते हैं? एप्पल जूस. बी इज ऑरेंज जूस एंड बोथ ऑब्वियसली, यानी इसमें टोटल कितने हैं? 400. यानी ए यूनियन बी कितना बोला है? 400. एन ऑफ ऑब्वियसली नंबर ऑफ पीपल टेकिंग एप्पल जूस इज 100. नंबर ऑफ पीपल टेकिंग ऑरेंज जूस इज 150, ये गिवन है आपके पास. एंड 75 आर टेकिंग बोथ. ए इंटरसेक्शन बी इज हाउ मच? 75. अब क्या पूछा है? फॉर्मूले में डालेंगे इंटरसेक्शन, जो मतलब हमारे पास एक सेकेंड, वेट टेकिंग बोथ एज वेल एज आवर, हाउ मेनी टेकिंग नीदर. यहाँ पे नॉर भी बताना है, तो हम सबकी बात नहीं कर रहे. भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने ध्यान नहीं दिया, ध्यान से सुनते हैं. इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, 400 स्टूडेंट टोटल स्कूल में 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल, 150 वर टेकिंग एज ऑरेंज जूस, 75 वर लिस्टेड टेकिंग बोथ. How many students were taking neither apple nor orange? जब neither apple nor orange कहा है, तो यानी इनके अलावा यहाँ पे भी कुछ है ना. neither apple nor, तो ये है. तो ये टोटल अगर 4 कहा था 400, तो वो ए यूनियन बी नहीं है. टोटल स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर 400, यानी नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स कितने हैं? 400. वो एन ऑफ यू है, क्योंकि नीदर पूछा है आपसे, तो यानी नीदर यानी नहीं ले रहे, तो यानी पीपल आर हेयर जो नहीं ले रहे. अब जो पूछा है वो बहुत इंटरेस्टिंग. दे आर आस्किंग फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट टेकिंग नीदर टेकिंग एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस. अब इसको जरा सिंपल में और ब्रेक करें. नीदर एप्पल नॉर ऑरेंज मैं लिख रही हूँ, फिर ब्रेक करना उसको प्लीज. नीदर एप्पल नॉर ऑरेंज, ये है. नीदर एप्पल नॉर ऑरेंज का मीनिंग होता है दे आर नॉट टेकिंग एप्पल, यानी नो एप्पल जूस. मैं सिंपल में लिख रही हूँ, नो एप्पल जूस एंड no orange juice. I am not writing a sentence having a meaning. I am just telling that क्या मीनिंग है इसका. मतलब मैं ये नहीं बोली कि करेक्ट इंग्लिश की बात करें यहाँ पे. हम यहाँ पे बोले ना ही एप्पल जूस ना ही ऑरेंज जूस. नीदर एप्पल नॉर ऑरेंज मीन्स नो एप्पल जूस नो ऑरेंज जूस. दे आर नॉट टेकिंग, नहीं है. और वर्ड क्या आ रहा है? एंड. तो एंड का क्या मीनिंग होता है?
एंड का मीनिंग क्या है? कॉम्प्लीमेंट. दैट मीन्स एप्पल भी नहीं चाहिए, मतलब नो का मीनिंग कॉम्प्लीमेंट और एंड का मीनिंग क्या है? इंटरसेक्शन. नो मीन्स एप्पल, मतलब नो का मीनिंग कॉम्प्लीमेंट और एंड का मीनिंग क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन आपके लिए. तो जब ये पूछ रहे हैं इसका मतलब है पहले नो एप्पल मतलब ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, एंड का मीनिंग हो गया इंटरसेक्शन, और नो ऑरेंज का मतलब है बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट. ए कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन, बी कॉम्प्लीमेंट. जरा याद करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ क्या था? ये किसके इक्वल था? हमने लिखा था ए इंटरसेक्शन एंड सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल था? दिस वाज इक्वल टू व्हाट? अगर मैं कॉम्प्लीमेंट पूरा का पूरा कॉमन ले लेती हूँ तो क्या हो जाएगा? इफ आई टेक कंप्लीटली कॉमन, इसका इंटरसेक्ट मतलब कॉम्प्लीमेंट बाहर, इसका अगर मैं इंटरसेक्शन पूरा कॉमन ले रही हूँ तो इंटरसेक्शन क्या बन जाता है? यूनियन बी एंड होल कॉम्प्लीमेंट. इजंट इट? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ये होता है. इजंट इट? तो अगर मुझे इसके एलिमेंट्स चाहिए तो मतलब मुझे इसके एलिमेंट्स चाहिए. और ये क्या होगा? ये किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल में से उसको माइनस कर दो. दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. यानी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है यूनियन में से, यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को माइनस कर दो. तो सिंपल सी बात. अब यहाँ चेक करते हैं. पहले ए यूनियन बी निकल जाएगा फॉर्मूले से. ए इंटरसेक्शन बी मालूम है, ए मालूम है, बी मालूम है. तो एन ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? एन ऑफ ए. आप पूरा फॉर्मूला लिखेंगे, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ. ये फॉर्मूला ना ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन. 250 में से 75 गया तो कितना हो जाएगा? 175. यहाँ आ गया आपके पास ए यूनियन बी. अब अगर पूछा है एन ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका मीनिंग हुआ एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी. यू में से माइनस कर दीजिए. 400 माइनस 175 कितना हो जाएगा? 4 में से 175 गया तो 225. देयर 225 स्टूडेंट्स. तो यहाँ पर है who do not drink any of the juice. ना ही वो एप्पल जूस लेते हैं ना ही वो ऑरेंज जूस. क्लियर? isn't it interesting one? That's why I told you. And example number 27 में अगेन आपसे पूछे, जैसे वहाँ पे पूछे केमिकल C1, मैं क्वेश्चन का पार्ट्स बता रही हूँ क्या क्या पूछा. आपसे पार्ट को ध्यान देंगे. C1 बट नॉट C2. अगर मैं कहूँ C1 बट नॉट C2 मतलब क्या होता है? ओनली C1 बोल रही हूँ. ठीक है, लिख लेंगे वहाँ पे C1 बट नॉट. जैसे A बट नॉट B, तो A बट नॉट B यानी ओनली A. दिस इज व्हाट इट मीन्स. एंड B बट नॉट A मीन्स ओनली B. बट नॉट बोल रही है यानी दूसरा पार्ट नहीं चाहिए, तो यानी सिर्फ ओनली वही पार्ट चाहिए. तो ओनली और ओनली चाहिए. क्लियर विद दैट? एंड अगर दो और वर्ड है तो और का मीनिंग क्या बोला था? और मीन्स क्या? यूनियन. ए और बी, C1 और C2 यानी C1 यूनियन C2. आई होप दिस पार्ट इज टोटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इसकी एक्सरसाइज थॉरली खत्म करेंगे आप. 1.5 आई थिंक सो. अच्छे से पूरी की पूरी फिनिश हो जानी चाहिए कंप्लीटली. एनी डाउट्स आई ऑलवेज आस्क, से दैट आस्क इट. ओके, डू इट वेरी प्रॉपरली. सो बाय.